20 of NCERT solutions of class 11th. Name of the chapter is Laws of Motion. Now the question is, a batsman deflect a ball by an angle of 45 degree without changing initial speed, which is equal to 54 km per hour. What is the impulse imparted to the ball if the mass of the ball is 0.15 kg? Now in this question we have to find the impulse, and mass of the ball which is given to us is 0.5 kg, 15 kg, and we have to find the impulse. Now as we know, impulse is what? Change in momentum, that is mass into change in velocity. Okay. Now there is a ball which a batsman deflected by an angle of 45 degree. For example, the ball is in this way and batsman deflected this ball with an angle of 45 degree. Okay. Now there is a change in velocity of the ball. So in order to find a change in velocity, we use the formula, because from the parallelogram, that is V1 square plus V2 square plus 2V1 V2 into cos theta. Now what is V1 and V2? The speed of the velocity, speed of the ball, which is equal to 54 km per hour. But it is given that km per hour and mass is given in kilogram. So we convert this speed, that is we convert this velocity into meter per second. We always take velocity in the meter per second. Always remember it. Now velocity is 54 km per hour. When we convert it into meter per second, we have to multiply with 5 by 18. Just remember it. Okay. Then it is converted into meter per second. So when we solve, what we get? We get 9 6 are 54, 9 2 is 18, 2 3 is 6. That is 3 5 is 15 meter per second. Always remember, in impulse, take the mass in kilogram and velocity in meter per second. And unit of impulse is kilogram meter per second. Always remember it. This is the unit of impulse. So we take the velocity in meter per second. Now we have to find a change in velocity. Now here the ball, speed of ball doesn't changes. वही speed रहेगी but angle change हो रहा है. That means in V1 and V2 we both take 15 square plus 15 square plus 2, 15 into 15 and cos 45 degree. Value of cos 45 degree is 1 upon under root 2. So we write over here into 1 upon under root 2. Now you have to solve this. I am not going to solve, and you will get approximately 27.12 meter per second. When you solve this, you will get the answer of the velocity, change in velocity, 27.72 meter per second. Now when we have to find the impulse, we have to find mass into velocity. So impulse is, mass is what? 0.15 kg and velocity is 27.72, and when you solve, you get the value of the impulse, which is approximately equal to 4.16 kilogram meter per second. So this is the way and the method by which you can solve this question. This, it is given in your textbook, question number 24, and in this graph, if we observe, on the y-axis we have x centimeter, that is the distance is given, and on the x-axis time is given, 2 seconds, 4 seconds, 6 seconds, and mass of the particle which shows this graph, okay, which follow this graph, is 0.04 kg, and we have to find the magnitude of the impulse of the particle which is showing this graph. First thing, how will we proceed? What is the formula for impulse? Which is mass into change in velocity. Okay, and mass of the particle is given to us. We have to find change in velocity. Learn one thing. If there is a graph of distance time, then slope of this graph gives velocity. Okay. When there is a graph of distance and time, the slope of this graph gives us velocity of the particle. Now, if we take the position time t, okay,
सो बिफोर 2 सेकेंड्स होने के पहले अगर हमको वेलोसिटी निकालनी है, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो 2 सेकेंड के पहले यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आ रही है? 2 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? 0। यहाँ पे टाइम कितना है? 2 और इनिशियल टाइम कितना है? 0। यानी आपका कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर टाइम 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? 4। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 2। दैट मीन्स यहां पर नहीं, यहां पर आपकी ये आपका टाइम डिस्टेंस है और यहां पर ये डिस्टेंस कितना आ जा रहा है? 0। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी में आपको डिस्टेंस लेना होगा, तभी आपका वेलोसिटी आएगा। फाइनल डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस, ठीक है, ये डिस्टेंस है आपका। तो यहाँ फाइनल डिस्टेंस 0 है, दैट इज 0 माइनस 2। टाइम में आपका 4 माइनस 2, ये आपका हो गया -2/2 विच इज इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द चेंज इन velocity. One thing more, it is given in centimeter, and in impulse we must have the velocity in meter per second. So overall ये जो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है आपका, इसको आप मीटर पर सेकेंड में करोगे तो 100 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, तो आपकी जो वेलोसिटी आएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0.01 मीटर पर सेकेंड। तो आपकी चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस u, यानी -0.01 माइनस 0.01, दोनों को ऐड करोगे 0.02 मीटर पर सेकेंड। अब इम्पल्स अगर निकालना है तो मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी। मास आपका कितना है? 0.04, चेंज इन वेलोसिटी 0.02। यहाँ पर भी 2 पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 है, अगर हम इनको हटा दें तो 10 to the power -4 हो गया। नहीं समझ में आया? अगर हम ये पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 100 आएगा। यहाँ पर भी ये हटाते हैं तो नीचे 100 आएगा। तो 4 2 ज़ा 8 अपॉन नीचे 4 0 हो गए, तो 4 0 का मतलब 8 इंटू 10 to the power -4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम इम्पल्स मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन लीनियर मोमेंटम करके सॉल्व करते हैं। इस पुली से हम यहाँ पर 2 मास लटकाते हैं। यहाँ पर स्मॉल मास है, यहाँ पर मान लीजिए कैपिटल मास है। मेरा मतलब ये है कि अगर मान लीजिए ये 5 किलो है तो ये 10 किलो है, यानी इसका वजन ज़्यादा है। तो जब इसका वजन ज़्यादा है और इसको ऐसे ही सिर्फ पुली में लटका दिया तो इसकी स्ट्रिंग ज़्यादा नीचे आएगी, है ना, ये धागा नीचे जाएगा, तो दोनों में ही एक ग्रेविटी की तरफ फोर्स लगेगा। ये हो जाएगा m इंटू जी, ये हो जाएगा कैपिटल M जी। इस पर भी ये ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा, इस पर भी ये ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा। ये मान लो T1 है, ये मान लो T2 है, लेकिन ये दोनों टेंशन्स जो होते हैं ये आपस में बराबर होंगे, तभी ये धागा बैलेंस होगा। ठीक है, ये अलग अलग नहीं होंगे। अब इसमें हमको कुछ चीजें निकालनी होती हैं कि ये जो स्ट्रिंग है इसमें कितना टेंशन डेवलप हुआ, क्या तनाव आ रहा है इस धागे के अंदर, क्या टेंशन आ रहा है। दूसरी चीज, ये किस एक्सेलरेशन से ऊपर नीचे स्ट्रिंग जा रही है। ठीक, यहां पर आपका फर्स्ट केस आएगा, मान लीजिए अगर हम इसके ले लेते हैं, ठीक, तो जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आया
वो हो गया एम, कैपिटल एम और ए, एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों में जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा वो सेम होगा। लेकिन ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ये जो टेंशन है ये कम होगा और ये mg की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि इसका वजन ज्यादा है, क्योंकि नीचे की तरफ खींचेगा, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। तो यहां पर हमको ध्यान देना है, हम लिखेंगे mg माइनस टी। ठीक है। सेकेंड केस देखिए, जहां पर ये मास कम है, जहां पर ये मास कम है तो यहां पर हम ma लिखेंगे, लेकिन यहां पर ये धागे का टेंशन ऊपर की तरफ है, धागा ऊपर खींचेगा इसको, तो यहां पर हम लिखेंगे टेंशन माइनस ma, ये अंतर आएगा, mg सॉरी। ठीक, इसमें हमको दो चीजें निकालनी है कि इसमें इस कनेक्टेड मोशन के दौरान एक्सेलरेशन क्या डेवलप हो रहा है। तो अगर हमको एक्सेलरेशन डेवलप्ड निकालना हो कि क्या एक्सेलरेशन डेवलप होगा, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस करेंगे। ठीक है, आपने इन दोनों को प्लस किया तो ma प्लस ma इज इक्वल टू mg माइनस टी प्लस टी माइनस mg, ये हो गया। ये दोनों टी आपके कैंसिल हो गए। यहां पर आपने एक्सेलरेशन बाहर ले लिया, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, यहां पर आपने g कॉमन ले लिया, कैपिटल M माइनस स्मॉल m। ठीक, यहां से अगर आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना हो तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया कि आपको दोनों के मास को माइनस करना है, नीचे आपको दोनों को प्लस करना है, इनटू इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो भी आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी यहां से आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया m माइनस एम अपॉन m प्लस एम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब इसमें सेकेंड चीज अगर हमें निकालनी है कि स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, उस स्ट्रिंग में क्या टेंशन डेवलप हुआ। उस स्ट्रिंग में अगर टेंशन डेवलप्ड अगर हमें निकालना हो तो हमको दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करना होता है, ये याद रखना। टेंशन निकालने के लिए हम दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि अगर हम इसको प्लस करते हैं तो टेंशन कट जाएगा, तो हम टेंशन कैसे निकालें, तो हम डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको पूरा पूरा ऐसे डिवाइड कर देते हैं तो देखो बेटा ये ए कैंसिल हो गया। ठीक, आपका आ गया कैपिटल M अपॉन स्मॉल m mg माइनस टी ओवर t माइनस mg। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया m इंटू टी माइनस m इंटू m इंटू जी इज इक्वल टू m इंटू m इंटू जी माइनस एम टी। इसको टेंशन को आप एक तरफ ले आओ, तो ये कैपिटल M टी माइनस स्मॉल m टी इज इक्वल टू m इंटू m जी प्लस m इंटू m जी। ये आपको टेंशन आ जाएगा m माइनस m सॉरी प्लस m, इधर माइनस है इधर आके प्लस, ये 2m इंटू m इंटू जी। यानी ये जब आपको टेंशन निकालना होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला टेंशन के लिए क्या आ गया, 2 दोनों मासेस को मल्टीप्लाई करना है अपॉन दोनों को हमको ऐड करना है। अब इसी क्वेश्चन पर बेस्ड मैं एक न्यूमेरिकल आपको देती हूँ और देखते हैं कि वो न्यूमेरिकल हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम आपसे ये कहते हैं, हमने आपसे कहा कि अगर हम यहाँ पे 2 मासेस ले लें, मान लीजिए ये मास मैंने 8 kg का ले लिया और ये मास मैंने 12 kg का ले लिया, और इस कनेक्टेड डायग्राम में, कनेक्टेड सिस्टम में हमें ये निकालना है कि इस स्ट्रिंग में कितना एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है और इस स्ट्रिंग में क्या टेंशन। तो मैंने कैसे फॉर्मूला डराइव होता है ये आपको बता दिया। तो हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो m माइनस एम अपॉन m प्लस m इंटू जी, यानी 12 माइनस 8 अपॉन 12 प्लस 8। एक्सेलरेशन ग्रेविटी में आप 10 भी ले सकते हो और 9.8 भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4/20 इंटू 10, ये आपका कट गया 5 और ये 2। तो एक्सेलरेशन आपका डेवलप हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। इसी तरीके से हम टेंशन निकाल सकते हैं
टेंशन निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला है 2 प्रोडक्ट ऑफ द मासेस इनटू ग्रेविटी अपॉन सम ऑफ द मासेस विच इज इक्वल टू 2 12 इंटू 8 इंटू 10. आप दोनों को जोड़ोगे तो ये 20 हो जाएगा. ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. 12 8s are 96. This is tension, that is 96 Newton. So in this way we solve this type of questions. A shell of mass 0.02 kg is fired by a gun of mass of kg 100 kg. Of mass 100 kg. If the muzzle speed of the shell is 80 meter per second, what is the recoil speed of the gun? शेल यहाँ पर क्या चीज़ है बेटा? बंदूक की गोली. एक बंदूक से गोली फायर की गई, उस गोली का जो मास है वो शेल है यानी 0.02 kg और बंदूक की जो मास है वो है 100 kg. अब जो गोली उसमें से निकली वो 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चली गई. तो जब गोली हम दागते हैं किसी बंदूक से तो जो बंदूक होती है थोड़ा पीछे की तरफ जाती है. तो जो बंदूक की रिकॉइल स्पीड होगी वो हमको निकालनी है. तो शुरुआत में अगर देखा जाए तो आपकी जो बंदूक है, मुझे ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं आती, और जो गोली है वो दोनों रेस्ट पर है, यानी इनका जो इनिशियल मोमेंटम है वो 0 है. लेकिन बाद में इसमें से गोली निकल गई और आपकी ये बंदूक बची गई. तो लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ फाइनल मोमेंटम होगा. और हमारे पास एक लॉ है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी दोनों बराबर होगा. तो इनिशियल मोमेंटम आपका 0 हो गया. फाइनल मोमेंटम में क्या होगा? मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ द गन, हमने कैपिटल से लिखा. मास ऑफ शेल, वेलोसिटी ऑफ शेल मतलब गोली का. ठीक. तो मास ऑफ गन आपका कितना? 100 kg और आपको वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है. ये हमको भी पता नहीं है. शेल का जो मास है वो क्या है? 0.02 kg और उसकी वेलोसिटी क्या है? 80 मीटर पर सेकेंड. और अब हम यहां से v निकाल सकते हैं, दैट इज 100v इज इक्वल टू 0.02 इंटू 80. अब आपने 100 यहाँ पे रखा, ये 0 आपका कैंसिल हो गया. ठीक है, ये 0 आपका हटा तो ये 0.8 हो गया. तो 8 2 जा 16 और कितने पॉइंट? 1 2 3 1 2 3. दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द गन. Of each of mass 0.05 kg moving in opposite directions with a speed of 6 meter per second and they collide. 2 बिलियर्ड बॉल्स हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. उसके बाद दोनों कोलाइड करती हैं. कोलाइड करके दोनों रिबाउंड कर जा रही हैं. ठीक है. और दोनों का जो मास है ये है 0.05 kg और जो ये रिबाउंड करती हैं तो उनकी जो स्पीड आ रही है वो है 6 मीटर पर सेकेंड. तो ये कोलाइड कर रही है और वापस रिबाउंड हो रही है, तो उसका इम्पल्स क्या है? इम्पल्स क्या होता है कि फोर्स इनटू टाइम. लेकिन अगर हम इस तरीके से इम्पल्स निकालें तो इम्पल्स इज ऑल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम. सो इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम वो होगा मास इनटू वेलोसिटी, और जो फाइनल मोमेंटम होगा वो माइनस मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि सेम स्पीड से रिबाउंड कर रही है. तो चेंज इन इम्पल्स अगर निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम यानी माइनस mv माइनस mv, यानी अपोजिट डायरेक्शन में 2 mv. तो मास ऑफ द बॉल्स क्या है? माइनस, मैं यहां पे साफ साफ लिख दे रही हूं ऊपर, दैट मीन्स इम्पल्स इज इक्वल टू -2 इंटू मास ऑफ द बॉल 0.05 इंटू 6, यानी 2 5 10 यानी -0.10 इंटू 6 विच इज इक्वल टू -0.60. क्लियर? यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. फिनिश.